شہزادہ صلح کا شہزادہ یسوع مسیح صلح کا شہزادہ راجاؤں کا راجا مکتی کا راستہ راجاؤں کا راجا مکتی کا راستہ صلح کا شہزادہ کلام میں لکھا ہے خداوند اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہاللویا. اور جب خدا تخت نشین ہے تو بیمار نہیں رہ سکتے, غریب نہیں رہ سکتے, لاچار دینے والے بن جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو بے بس ہیں خدا انہیں زوراور بنا دیتا ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. پچھلی بار جو کلام پیش کیا گیا اس کی جو آخری حصہ تھا, میں خداوند تیرا شافی ہوں. ہاللویا. There is no healer in the world. اس دنیا میں آج تک کوئی شافی نہیں ہوا. ہاں, اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر ڈاکٹرز ہیں اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے. They are helpers. And but they cannot take the place of Almighty God. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہی ہے جو علاج کرتا ہے روح کا, اور وہ ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. ہاللویا. اور وہی روح سے معمور لوگ جو خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں, ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. ہاللویا. آپ نے میٹنگز میں, پچھلی میٹنگ میں ہمارے 6-7 گواہیاں تھیں. خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے بڑے بڑے کام کیے. اور یہاں پر ایک نوجوان ہے عارف. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا بولتا ہے. اور بولتا کون ہے؟ بولیے. جو زندہ ہے, اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا. اور اس نے کہا میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. ہاللویا. عارف پیشے کے لحاظ سے ایک بزنس مین ہے, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جب سے خدا نے توفیق دی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں, خدا نے ان کے لیے بڑے لمبے چوڑے راستے کھولے ہیں. اور خدا نے ابھی کل ایک بڑا کام کیا ہے, اور وہ ایک ایسی امیگریشن ہے جو خدا نے سال ہر سال کے بعد دعاؤں کے جواب میں جب خدا مجھ سے بولا, اور میں نے کہا عارف گیٹ ریڈی, گاڈ از گوئنگ ٹو ڈو دا گریٹ میریکل. اور خدا نے جو بڑا معجزہ کیا, میں چاہوں گا کہ عارف اپنی زبان سے بتائیں کہ ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہاللویا. چونکہ خدا کے پاس کون سا اختیار ہے؟ میرے پیچھے بولیے. یسوع نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللویا. اور یاد رکھیے, اپنے اوپر ہاتھ رکھیں, یسوع نے یہ اختیار مجھے بھی دیا ہے. ہاللویا. اس لیے میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو یسوع کر سکتا تھا, اور جو یسوع کر سکتا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللویا. میں عارف سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گواہی دیں. اس کے بعد ایک اور گواہی جو ہے وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے, ایلون شریف آئیں گے. ہاں جی, گواہی دیں گے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جی یسوع میں آپ سب کو سلام. ویسے تو جب سے میں نے فیلوشپ کو جوائن کیا ہے بہت سی گواہیاں ہیں. ریسنٹلی میں اپنے بڑے بھائی سے کل ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے 2.5 سال پہلے کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا, اور 1.5-2 سال تو کوئی خیر خبر ہی کم تھی. پہلے اپروول آ گئی, بعد میں پھر جب میں نے خداوند سے فریاد کی تو خدا کے خادم نے بولا کہ راستے کھل گئے ہیں, اور اسی سال میں یہ شکر گزاری کا سال ہے, اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام ہوں گے. اور اسی طرح مئی میں ہمارا وہ کال آئی ادھر سے کہ آپ ہمیں اپنے فریش پاسپورٹ سے اور باقی بھی جو آپ کی انفارمیشن ہے لیٹسٹ وہ دیں. اور کل میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے فرائیڈے کو میں نے ریسیو کیا میڈیکل کے پیپر. یعنی یہ سمجھے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی سٹیج ویزا کی ہوتی ہے, اور یہ سارا جلال میں خداوند کے نام کو خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجائیے. ہاللویا. You and we have the authority. We can control embassies and ambassadors. Hallelujah. Praise God. Thank you very much. کون موج سے کرتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اونچے آواز میں بولیے. کس کے وسیلہ سے کرتا ہے؟
अपने ऊपर हाथ रखें, मेरे वसीला से करते हैं। हालेलुया। यीशु मुझ में है, यीशु आप में है और आपके वसीला से काम करता है। प्रेज गॉड। जी आलवन, कम ऑन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि पिछले संडे हम फैसलाबाद गए थे, तो मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अचानक डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने खाली पेट उसको मेडिसिन खाने की दी, तो वो जिस खाने के बाद फ़ौरन मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो उसके हाथ और पाँव अकड़ गए, तो उसने कहा कि इस पे जिगर पे अटैक हुआ है। तो साथ ही लाइडा हॉस्पिटल था, तो हम उधर ले गए, तो डॉक्टरों ने मेडिसिन दी, तो उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्टें फ़ौरन करवाएं, क्योंकि जिगर की रिपोर्ट उसके आने के बाद नॉर्मल थी, 5 से 42 तक होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बीवी की जो थी वो 86 थी। 2 दिन उधर रहे हम, तो बहुत परेशान रहे। तो 2 दिन के बाद जब वापस आए तो वापसी पे हम उधर सैंपल दे के आए दोबारा। तो इधर आके मैंने उनसे सैंपल की पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी वो रिपोर्ट नहीं आई। तो मैंने खुदा के खादम पास्टर साहब से दरख्वास्त की कि ये मसला हो गया, तो आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एक रेंट पे हूँ, दूसरा इतनी बड़ी मुसीबत खुदावंद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदावंद ने दुआ की, तो 1 घंटे के बाद मैंने अपने दोबारा उधर फ़ोन किया कि मैंने कहा रिपोर्ट आई है, तो वो कहते हैं आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नील है, उसमें कुछ आया ही नहीं है। हालेलुया। क्या आप तालियां बजा सकते हैं खुदा के बड़े कामों के लिए? थैंक यू वेरी मच। खुदावंद बड़ा अजीम है। और मैं वाज़ह करता चलूँ कि ये दुआ सैडिक डैनियल साहब, जिनका टेलीफोन नंबर दिया गया है, जो बड़े दुआ गो सूरमा हैं, उनकी दुआओं के जवाब में खुदा ने इस प्यारी बहन को शिफा दी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप में से कितने मान रखते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां? हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए इस प्रिविलेज के लिए भरपूर तालियां बजाएं। इट्स एन ऑनर टू बी द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। ये एक एजाज है। प्रेज गॉड। सो आइए आज हम कलाम का हिस्सा, जिसको मैंने पिछली बार मजमून को शुरू किया, उसको मैं जारी रखूंगा। वो ताल्लुक है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आज जो मेरे सामने खुदावंद ने आयत रखी, ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। 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 मेरे पीछे बोलिए, तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। आए खुदावंद, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरे कलाम की तशरीह मुझे नूर बख्शती है। हालेलुया। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। और ज़बूर 103 और उसकी 3री आयत में लिखा है, आप मेरे पीछे बोलिए अपने दिल पर हाथ रखकर, वो मेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो मेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह की हालत में होते हैं, याद रखिए हम मौत की हालत में हैं। और मौत एक मसीही के लिए हमेशा की जिंदगी का रास्ता है, लेकिन याद रखिए एक गुनाहगार के लिए मौत जहन्नम की वो राह है जिसकी आग का कीड़ा नहीं मरता। इसलिए याद रखिए, इस दुनिया में रहते हुए हमेशा की जिंदगी की तैयारी करना बड़ा जरूरी है। और ये यशायाह 53 और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, तो अभी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया। अपने पर हाथ रखें, ताकि यीशु के मार खाने से मैं शिफा पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना
जिसे यूहन्ना आरिफ भी कहा जाता है, और उस पर आज के दौर का सारा इरफान खुल गया। मुकाशफा का मतलब है टू ओपन, किसी चीज को खोल देना, और ये सारा मुकाशफा खुदावंद ने अपने खादिम यूहन्ना को, जो यीशु की छाती पर सोता था, he was closest to Jesus, hallelujah, and he was standing just below the cross। जब खुदावंद यीशु उस वक्त कुर्बानी मेरे और आपकी दे रहे थे, तो उस वक्त भी यूहन्ना यीशु के पास खड़ा था, और वो यीशु के ऐसा गवाह था जिसको उसने इस्तेमाल किया। और यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में यूं लिखा है, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर बोलें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने जितना ईमान हो। आज हमारा मजमून क्या है, इसको हमने समझना है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हलाकत से और बीमारियों से छुटकारा देता है। हालेलुया, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ टुडे। हमने समझना है कि आज कौन सा मजमून है और कहाँ पर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। खुदावंद यहोवा खुदा ने एक गैर मशरूत मोहब्बत की है, और इस मोहब्बत को अगापे, AGAPAE, अगापे, एक ऐसी मोहब्बत जो अनकंडीशनल है, एक ऐसी मोहब्बत जो खुदा की मर्जी है, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें हम देखते हैं कि ये खुदा का इंतखाब है। और मत्ती की इंजील में लिखा है, वो अपने सूरज को नेकों और बदों पर चमकाता है। हालेलुया। और वो बारिश को नेकों और बदों पर क्या करता है? बरसाता है। ये उसका कलाम है, और उसके कलाम के नज़ूल से मौजज़ात होते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, मैं अब उस कलाम की तरफ आपको ला रहा हूँ जिसका जिक्र ज़बूर नवीस करता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर क्या देते हैं उनको। और कलाम कौन है? सब ऊंची आवाज में बोले, यीशु कलाम खुदा है। बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु कलाम खुदा है। यीशु खुदा का मुजस्सम कलमा है। और मेरे पीछे आपने बोलना है, इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कलाम नाज़िल होता है तो बीमारियां जाती रहती हैं, और हर किस्म की तारीकी नूर में बदल जाती है, क्योंकि वो नूरों का बाप है। हालेलुया, नूरों का बाप। और उसने क्या कहा? दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। और आगे लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। कौन मुजस्सम हुआ? पहली 2 आयत यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी पहली 2 आयत मैंने बोली है। 15वीं जो 14वीं आयत है, यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत, मेरे पीछे बोलिए, यही सब मैसेज को ऊपर लेकर चलेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, यीशु मसीह ही कलाम मुजस्सम है। यीशु मसीह ही है जो रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ। मैं दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे अंदर होगा, और मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। Nobody else can claim it। सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु है। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मखलसी देने वाला, मसाइल को हल कर देने वाला, दुखों को दूर कर देने वाला, गिरहों को उठा देने वाला, मनफी सोचों को मुस्बत सोचों में बदल देने वाला। हालेलुया। मैं यीशु का मतलब बता रहा हूँ। हालेलुया। इसके वसी मानी है, लेकिन जो मुझे पाक रूह इस वक्त दे रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मरकज़ की इंजील के 2 बाब में, उसकी पहली से 12 आयत में, मैं
اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے کلام کا نزول ہے جو کہ کسی گناہگار کو معاف کرتا اور اس کو شفا دیتا. It is the pouring of the word. جب کلام نازل ہوتا ہے تو گناہگار کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں. خدا اپنے کلام کے نزول سے گناہگار کو راست باز بنا دیتا ہے. Hallelujah. It is by believing the word. جب ہم کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنے کلام کے نازل فرمانے سے مفلوجوں کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. اگر ہم مرکز 2 باب اور اس کی 1 سے 12 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کئی دنوں کے بعد یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا. غور سے آپ نے سننا. کفرنہوم وہ جگہ تھی جہاں پر پترس پیدا ہوا اور جوان ہوا تھا. کفرنہوم وہ جگہ تھی جہاں پر یسوع آ کر پترس کے گھر میں ٹھہرتا تھا. آج میں اسپرٹ فلڈ بائبل سے یہ سارے نوٹس لے رہا تھا اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے. Why he was going to Capernaum. وہاں پر جو پہلا شاگرد اس نے چنا تھا وہ کون تھا؟ پترس. ہاللیلویہ. اور آج بھی جو پہلے چنے جاتے ہیں وہی لیڈرشپ میں رہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. اگر وہ وفادار ہوں یہ بڑا ضروری ہے. ہاللیلویہ. لیکن اگر وہ بے وفا بھی ہو جائیں اور توبہ کر لیں تو وہ پترس کی طرح بحال ہو سکتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. The open hands of the Lord are open wide. خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں ان کے لیے جو توبہ کر کے لوٹ آتے ہیں اور خدا انہیں کا دیتا ہے برکت دیتا ہے. اور یسوع کفرنہوم میں پترس کے گھر میں داخل ہوا اور لکھا ہے اور وہاں پر ایک بھیڑ لگ گئی. I remember, مجھے یاد ہے انگلینڈ میں مجھے خدا نے موقع دیا. سینٹرل لنڈن میں میری ایک میٹنگ تھی اور وہاں پر ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 90 سال تھی. اس دن خدا نے جو کلام دیا وہ روح القدس کے اوپر تھا اور انگلش ساری کانگریگیشن تھی اور خدا نے لوگوں کو پاک روح سے معمور کیا. اور وہ جو 90 برس کا آدمی تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا پاسٹر I never heard such a message who can put fire in my bones. میں نے ایسا کلام جو ہڈیوں میں آگ پیدا کر دے نہیں سنا ساری عمر. کیونکہ میں تو شراب بھی پیتا تھا اور اپنے آپ کو راست باز سمجھتا تھا. لیکن آج کے کلام نے میری زندگی میں ایک تلحقہ مچا دیا ہے. تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی. یہ سارے چال ہیں شراب نوشی, سگریٹ نوشی, گندی سیاست, ناپاکی, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور یسوع پترس کے گھر میں تھا اور لکھا پھر ایک بھیڑ وہاں پر جمع ہو گئی اور یسوع نے وہاں پر کلام سنانا شروع کیا. ہاللیلویہ. جب اس کے منہ سے کلام نکلتا ہے تو پھر تخلیق کا کام ہوتا ہے. ہاللیلویہ. The creation is by the word of God. خدا کے کلام کی تخلیق سے معجزات ہوتے ہیں. اور لکھا اور وہاں پر وہ ایک مفلوج کو لائے اور 4 لوگ اسے 4 پائی پر اٹھا کر اس کے چاروں پاؤں کو اٹھا کر یسوع کے پاس آئے. میں اکثر اپنی میٹنگز میں ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی بیمار ہو, کئی بار ایسے ہوتے ہیں ہماری میٹنگز میں بڑے اٹیکس بدروؤں کے ہوتے ہیں اور دورے پڑتے ہیں لوگوں کو. یاد رکھیے جتنا مرضی دوڑا پڑ جائے آپ نے کلام سنانا بند. ہاللیلویہ. کیونکہ کلام نے بدروہیں نکالنی ہیں یا پھر ڈینیل نے بدرو میرے پاس نہیں ہے. یہ قدرت, یہ کلام میں قدرت ہے, اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے اور خدا یسوع کلام سناتے رہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ خدا یسوع کلام سنا رہے ہیں تو اس مفلوج کے 4 ساتھیوں نے اسے اٹھا کر چھت پر لے گئے. اور وہ خاص قسم کی چھتیں تھیں جو کھل سکتی تھی. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ انہوں نے چھت کو کھول دیا. آج میرا مضمون ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو دیتا ہے, شفا دیتا ہے. ذہن میں رکھنا آج کا سبجیکٹ کیا ہے. اور لکھا ہے جب وہ اس کو نیچے یسوع کے بالکل لیول پر لے آئے اور یسوع دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک شخص جو کہ مفلوج ہے وہ لٹکا کر سامنے آ گیا ہے, تو یسوع نے وہاں پر کیا کیا جو آج کلیسیا میں پریچنگ نہیں ہے. گناہ کی منادی نہیں ہے, توبہ کی منادی نہیں ہے. منادی کس چرچ میں توبہ کی منادی ہے؟ Nobody wants to repent. بائبل کی ساری تعلیم کو لے لیں آپ, نوح کے زمانے سے لے کر یسوع کی منادی تک
मत्ती 4 बाब की 17वीं आयत तक, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मुकाशवत में 7 कलीसियाओं को एक ही पैगाम दिया गया, बस तौबा कर और देख के तू कहां से गिरा है। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से। तौबा का पैगाम एक बुनियादी पैगाम है। खुदावंद यीशु ने जब उस मफलूज को देखा तो खुदावंद यीशु ने इस फालिज की जड़ को उसने वहां पर ओपन किया। उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। याद रखिए ये गुनाह है जो हमें फालिज में, जो हमें बीमारियों में, जो हमें बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल देता है। यीशु ने अभी उससे ये नहीं कहा चल, फिर उसने क्या कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं जो तालियां नहीं बजाते उनको किसका फालिज है। मैं इसके लिए आयात दूंगा आपको। मेरे पास कलाम है, ज़बूर 47 में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, आए उम्मतो तालियां बजाओ। ऊंची आवाज में बोले। और कई कलीसियां इतनी सीरियस हैं, they are so serious with God, they don't want to clap, they have the paralysis of hands। ये पैरालिटिक डिजीजेस किसकी वजह से हैं? क्योंकि हम खुदा का कलाम नहीं जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, और यीशु ने क्या कहा, तेरे गुनाह क्या हुए, और 7 कौन थे उसके, क्यों भाई, 7 शरअ के आलम थे, फकी थे। तो फकी जो थे ना उनको बहुत ज्यादा शरीयत आती थी। मुझे मौका मिला कि मैं यूके में देखूं, बनी इसराइल के उन सिनागॉग्स को मैंने देखी, मुख्तलिफ जगह उनकी, या जर्मनी में या इन मुल्कों में जहाँ पर ज्यूज़ हैं, वो बहुत बड़े आलिम हैं और वो बात आप उनसे नहीं कर सकते हैं। दे नो देयर वर्ड बट दे हैव द हेड नॉलेज। और वो क्या देख रहे थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। ये वो दिलों में कह रहे थे, हैं? ये तो खुदा नहीं, और ये किस तौर पर गुनाह माफ कर सकता है। और मैं जब इस पर आज मुताला कर रहा था तो खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे दिल में डाली, और मैंने इसे इसलिए लिख लिया था कि मैं आपके साथ इसे बयान कर सकूं। दानियल 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यीशु का एक खूबसूरत नक्शा नजर आता है। मैंने रात को रोया में देखा, दानियल कहते हैं, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अय्याम तक पहुंचा। हालेलुया। यीशु कदीम उल अय्याम है, इसे होगा कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ, मैं मर गया था मैं जिंदा हूँ, आलम रवा की कुंजियां क्या हैं मेरे पास हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरअ के आलम दिल में कहने लगे कि खुदा के सिवा कोई भी गुनाह माफ नहीं कर सकता। वो ठीक कह रहे थे, चूंकि शरअ यही कहती है। लेकिन याद रखिए खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप इब्रानियों को पढ़ें और इसके 4थे बाब, तो मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे फकी उस शख्सियत के बारे में जो कलमा मुजस्सम खुदा है उसके बारे में सोच रहे थे, और वो इनके दिलों के ख्यालों को जांचने की पूरी कुदरत रखता है। हालेलुया। मैं बहुत बार कई बातों में डरता हूँ जब मैं बोल रहा होता हूँ, क्योंकि वो बातें पूरी साबित हो जाती, और मुझे खौफ आता है, क्योंकि कई बार लोगों के इतने गंदे नक्शे सामने आते हैं कि कोई भी खादम कांपता है कि किसी के बारे में कोई चीज़ ओपन ना की जाए। खुदा दिलों और गुर्दों को क्या करता है, जांचता है। रूह कुद्स के वसीला से बड़े बड़े काम खुदा करता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, और वो अपने दिल में कहने लगे खुदा के सिवा कोई गुनाह जो है वो माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यीशु ने क्या कहा, आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए,
या उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, लेकिन इसलिए कि तुम्हें मालूम हो कि इब्ने आदम को दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। हालेलुया। और यीशु ने कलाम नाज़िल किया, गौर से सुनिए। जब शरा के आलिम कलाम खुदा यीशु के साथ वो बात करते हुए झिझकते और दिलों में सोचते थे, तो यीशु ने वो कह दिया जो कि उनके दिलों में था। हालेलुया। और फिर उसने अपने इख्तियार वहां पर अपनी ज़ुबान मुबारक को खोल कर नाज़िल किया। उसने क्या कहा? उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। ये वही इब्तिदा में कलाम था जिसने, अगर हम पैदाइश की पहला बाब उसकी दूसरी आयत पढ़े, वहां पर लिखा जमीन सुनसान और वीरान थी और गहरा के ऊपर अंधेरा था और खुदा ने कहा रोशनी हो जा। हालेलुया। ये वही यीशु है जिसने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता, और आगे क्या लिखा है? और वो उनकी हलाकत से उन्हें क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक खास बात यहाँ पर चाहता हूँ कि आप सीख लें। याद रखिए, मौत एक मसीही के लिए हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। यीशु तो जानवन दुल्हन के लिए आएगा लेने के लिए, और उसके चेहरे की रौनक वो खुद होगा। हालेलुया। हालेलुया। उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कलाम नाज़िल हुआ, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है, और लिखा है और उनको उनकी हलाकत से, हलाकत क्या है? जहन्नम। याद रखिए, एक गुनहगार की दो मौतें होती हैं, याद रखिए। एक गुनहगार जब मरता है तो उसके बाद उसकी रूह जहन्नम में चली जाती है, और हम इसे हलाकत कहते हैं। याद रखिए, दिस इज द सेकंड डेथ। इस दुनिया में वो लोग जो दो बार पैदा होते हैं, एक बार तो वो अपने माँ बाप के घर पैदा होते हैं, और एक बार जब वो निकोदेमुस की तरह नए सिरे से पैदा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई नए सिरे से पैदा हुआ है तो वो सलामती से रुखसत होगा। हालेलुया। उसके लिए आसमानों में खुद यीशु खड़ा होगा ताकि उसका इस्तकबाल करे। हालेलुया। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर, याद रखिए, गुनाहों को माफ करता और ला इलाज रोगों का इलाज करता है। नंबर 2, इसको भी आप गौर से सुनिए। वो अपना कलाम नाज़िल करके रूहानी शिफा अता फरमाता है। कौन सी शिफा देता है? कौन सी? रूहानी शिफा। मैंने देखा अक्सर बोर्ड लगे होते हैं, ये आप जाए ना, और अब तो बड़ा एडवांस दौर आ गया, लिखा होता है मसीही जादूगर, जलाल मसीह। क्या यीशु मसीह किसी को जादूगरी की इजाजत देता है? मुकाशवा में लिखा जादूगर, कुत्ते, हरामकार जहन्नम में डाले जाएंगे। इसको गौर से सुन लें। हमारे पास बादशाहों का बादशाह जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आइए मुल्क पाकिस्तान के लिए भरपूर तालियां बजाएं। मैं इसकी खास वजह बताऊं। मुल्क पाकिस्तान में आज मैं यहाँ पर मनादी कर रहा हूँ, और आज भी यहाँ पर खुदा ने मुमकिन किया कि मनादी करें। हम अपने मुल्क के लिए जिसमें खुदा ने हमें पैदा किया है, याद रखिए, कलाम के मुताबिक मुल्क के लिए दुआ करना हमारा क्या है? फर्ज है। लेकिन हमारे बहुत कम लोग हैं जो इस मुकाशफे को जानते हैं। वी शुड प्रे फॉर आवर कंट्री, यू नो। खुदा ने हमें यहाँ पर पैदा किया है। हालेलुया। खुदा का देता है, कलाम के नुज़ूल से रूहानी शिफा देता और हलाकत से रिहाई देता। भाई अगर कोई बदरूहों में मर जाए तो क्या वो जन्नत में जाएगा? क्यों भाई? कहाँ जाएगा वो? बदरूहों के ग्रोह में शामिल हो जाएगा। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर, और मैं गौर कर रहा था जब मैं आज खुदा से कलाम ले रहा था कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ताकि जो कोई, हालेलुया,
तो जो कोई में सारे मज़ाहिब हैं, जो कोई में सारी दुनिया के लोग हैं, जो कोई में गुनाहगार, बदकार, शराबी और अच्छे और बुरे, याद रखिए शराफत का कोई स्केल बाइबल में नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि शराफत की वजह से आप जन्नत में चले जाएंगे, बाइबल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे शरीफ जो मसीह के बगैर कहाँ पर जाएंगे? मैं बाइबल से साबित करूँगा इसको। कहाँ पर जाएंगे? और कई लोगों को अपनी शराफत पर बड़ा मान होता है, मैं बड़ा शरीफ हूँ, और हमारे मुल्क में तो वैसे बहुत बहुत शरीफ है। ये शरीफों का मुल्क है और शरीफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बाइबल आज प्रीच कर रहा हूँ कि जो यीशु पर ईमान नहीं लाएगा वो अपनी ज़िंदगी को हरगिज़ नहीं देख सकता। हालेलुया। वो अपने कलाम के नज़ूल से बदरूहों से लोगों को आज़ाद करता और उनको हलाकत से रिहाई बख्शता है। मत्ती 15 बाब की 21वीं आयत से 28वीं आयत में मैं आज इस पर गौर कर रहा था, और खुदा यीशु सूर और सैदा में दाखिल हुए और लिखा है कनानी औरत वो थी जो कि मसीह पर ईमान नहीं रखती थी। उसके मज़हब में मसीहत उस वक्त जबकि अभी नई उभर रही थी, उसके मज़हब में जगह नहीं थी यीशु पर ईमान लाने की, लेकिन वो यीशु पर ईमान ले आई। और बाइबल का कहती है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। लिखा यीशु सूरह सैदा में दाखिल हुआ और एक कनानी औरत खुदावंद यीशु के पीछे बाआवाज़े बुलंद कहने लगी, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को। अगर आपके घर में कोई बदरू गिरफ्तार है, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो किसको रहम मांगने की ज़रूरत है? वालिदैन को। किसको? हालेलुया। आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को सताती। हालेलुया, हालेलुया। उसने शरीयत नहीं पढ़ी, उसने किसी भी सिनागोग में, किसी भी हैकल में, किसी भी इबादत गाह में जाकर कलाम नहीं सीखा, लेकिन वो कलाम खुदा को पहचान करके कहती है, आए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर? रहम कर। हालेलुया। क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मैं जब भी इस तमसील को और इस वाक़ा को बयान करता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। कई बार यीशु जवाब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु के पास हमारे मसाइल का हल नहीं। लिखा है और यीशु ने कुछ भी जवाब न दिया और वो चला रही थी। याद रखिए यहाँ पर एक आयत लिखी है, तू अपना मुंह खूब खोल। मेरे पीछे बोली, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। गौर से सुन लें, किसी वक्त इस पर मैसेज दूंगा। अगर हम अपना मुंह खुदा के हुजूर में नहीं खोलेंगे तो बीमारियां अपना मुंह खोल लेंगी। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो गरीबी अपना मुंह खोल लेगी। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो हादसात अपना मुंह खोल लेंगे। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो दुख और मुसीबतें और डराने वाले ख्वाब और ख्याल अपना मुंह खोल लेंगे। इसलिए हमें अपना मुंह क्या करना है? खोलने की क्या है? ज़रूरत है। हालेलुया। और लिखा है और यीशु ने कुछ जवाब न दिया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर उसे अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो खास तालीमी बातें हैं। लिखा है यीशु ने कोई जवाब न दिया और यीशु ने कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया हूँ। आज भी खुदावंद किसके पीछे है? किसको ढूंढ रहा है? अपने हाथ रखो, खुदावंद मुझ खोए हुए को ढूंढ रहा है। हालेलुया। दुनिया के मज़ाहिब खुदा को ढूंढने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है, जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा। और कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओह, कलाम में लिखा है और खुदावंद यीशु ने कलाम नाज़िल फरमाने से पहले, आज का मजमून क्या है? वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता और उनको क्या देता है?
शिफा देता है। हालेलुया। कलाम का नज़ूल शिफा है। जब कलाम नाज़िल होता है फिर शिफा का काम होता है। और यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने कहा मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर उसके बाद एक बार फिर आवाज़ आई, मगर उसने उसे आकर सजदा किया और कहा ए खुदावंद मेरी मदद कर। हालेलुया। क्या उसने छोड़ दिया? क्यों भाई उसने पीछे छोड़ा? जब तक कलाम नाज़िल नहीं हुआ, कलाम के नज़ूल से पहले फरियाद करनी ज़रूरी है। कलाम के नज़ूल से पहले, घरों के अंदर तब्दीलियाँ आने से पहले खुदा के हजूर में रोना ज़रूरी है। खुदा के हजूर में आंसू बहाने ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का रूह आंसुओं पर जुम्बिश करता है। हालेलुया। उसने कहा खुदावंद, यानी आए मेरे मालिक, आए मेरे खालिक, आए मेरे निजात देने वाले, आए मेरी बेटी की बीमारी के शाफी, तू क्या कर मेरी मदद कर। और कलाम में क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा, जब मैं इसको पढ़ता हूँ मैं रो पड़ता हूँ। यीशु ने क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। याद रखिए यीशु जिंदगी की रोटी है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु जिंदगी की रोटी है। इसीलिए जब उसने अशारबानी के वक्त रोटी ली और तोड़कर कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। और इसी तौर पर उसने शीरा लेकर कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे साथ एक नया अहद है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। यानी जो मेरा कलाम है पहले मेरे लोगों के लिए है। मेरा कलाम और मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो कनानी खातून यीशु को जवाब देती है, सुनिए आए खुदावंद, उस मेज से गिरे हुए टुकड़े जो मालिक की मेज से गिरते हैं, कुत्ते उन्हीं से अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। वो एक कुत्ते की जगह पर आ गई ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए। उस जगह पर आ गई जहां खुदावंद यीशु कलाम नाज़िल फरमाए। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। अभी तक उसकी बेटी को शिफा देने के लिए कलाम नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन she came to the place, वो हलीमी की उस जगह पर आ गई है जहां कहती हाँ मालिक, ये रोटी तो बेटों के लिए है, लेकिन कुत्ते भी मेज से गिरी हुई रोटी से अपना पेट भरते। हालेलुया। और फिर कलाम नाज़िल हुआ। जब मैं इस कलाम पर गौर करता और कर रहा था तो मैं इस पर रो पड़ा। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, इस पर यीशु ने जवाब दिया। किस पर? जब उस जगह पर आ गई जहाँ मौजज़ा हो। हालेलुया। इस पर उसने जवाब दिया, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये कलाम का नज़ूल है जो यीशु ने कलाम नाज़िल किया और लिखा है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। कलाम का नज़ूल क्या था? जैसा तू चाहती। हालेलुया। अगर हम फिरौतन होंगे, याद रखिए, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही खुदा हमारे लिए करने में क्या है? कादिर है। हालेलुया। जैसे तू चाहता है तेरे लिए वैसे ही हो। और मेरे पीछे बोलिए, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। हालेलुया। कितने दिन लगे? ये शिफा कौन रोकता है? अपने हाथ रखो। शिफा मैं रोके हुए हूं, है ना? शिफा तो मैं रोकता हूं ना। यीशु ने कहा औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, इसलिए जो चाहती है तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। कलाम क्या था? तेरी चाहत के मुताबिक तेरे लिए हो। और क्या लिखा? उसी घड़ी उसकी बेटी ने क्या पाई? शिफा पाई। हालेलुया। लास्ट पॉइंट जो आज के कलाम के ताल्लुक से है, वो अपना कलाम नाज़िल करता और उनको शिफा देता है और उनकी हलाकत से उन्हें रिहाई बख्शता। हलाकत मैंने क्या बताया था? क्यों भाई? हलाकत जहन्नम के लिए लफ्ज़, एवरलास्टिंग फायर। आखिरी बात, खुदावंद यीशु सलीब पर गए किसके लिए? ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। और सलीब पर भी वो शिफा का काम कर रहे थे। अगरचे वो जख्मी थे,
अगरचे वो दुख की हालत में थे, लेकिन याद रखिए कि वो खुदा का एक बड़ा काम कर रहे थे। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की गवाही सुनेंगे। शाफी कौन है? बोले ऊंची आवाज में। मैं चाहता हूं कि आप किसी इंसान को कभी क्रेडिट ना दें। शाफी कौन है? जिंदगी कौन देता है? अब्दी हयात का मालिक कौन है? बादलों पर जल्द आने वाला कौन है? हमेशा की जिंदगी में कौन ले जाने वाला है? हालेलुया। आइए उसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। मसीह यसू के नाम से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे ना दोवें कान बंद हो गए सी। मैंने 2 दिन मैंने सुनींदा नहीं सी और बिल्कुल नहीं सी सुनींदा। मैं 2 रातां 2 दिन मैंने बुलाते मैनू ना सुनींदा तो ना मैं बोल सकती तो ना मैंने कुछ समझ आती सी। मैं मेरा मियाँ आया ना जो काम तो मैं उन्हें कह के भाई मुबारक साहब ने फ़ोन करे कि मैं दुआ करे तो मेरे कान खुल जाए। तो उन्होंने कहा कि पानी को रख लो, मसा करवा लो। पानी मसा करवाया और मैं पानी पीती रही तो मेरे कान बिल्कुल खुल गए नहीं। तालियां मार सकते हो। बोले नूं पता कि की हुंदा। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए भाई मुबारक। सारी इज्जत यीशु के नाम। हालेलुया। वो पिंडी में होते हैं और ये टेलीफोन पे दुआ की गई। हालेलुया। और पिछली दुआ सैडेक साहब ने की थी। मत समझिए कि जेफ डैनियल सारे काम कर रहे हैं, ये एक टीम है। मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम जी। जी भाई मेरी ना बेटी बहुत बीमार सी। अच्छा। बहुत बीमार सी, बहुत लाचार हो गई सी, पानी खत्म हो गया सी। अच्छा। मैं भाई सैड साहब ने दुआ, मैं क्या भाई दुआ करो, मेरा ईमान तुसी दुआ करो कि मेरी बेटी शिफा पा लेगी और यस्सु के नाम से शिफा पा ली। उस वक्त उन्हें अखा खोल ली। भरपूर तालियां। उस वेले अखां अज भी खुल दियां ने। हालेलुया। उसी घड़ी मैं खुदावंदा मैं बड़ी खुशी से जाकर स्टेज पे तेरी गवाही दूंगी। आमीन आमीन। प्यार खुदा बड़ी बरकत है। पहला कलमा क्या था सलीब पर? सच बोलने किन्ने माफ कर देना। याद रखिए माफ कर देने से मौजज़ात हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने पहला कलमा बोला है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो कलाम लिखा है, कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। वो हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे में से होकर गुजर जाता और दिलों के ख्यालों को जांचता है। हालेलुया। ये कलाम किसकी जिंदगी में काम कर गया? दूसरे डाकू की जिंदगी में। हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा हम तो अपने किए की सजा पाते हैं। अगरचे वो डाकू एक ऐसा शख्स है जिसने जिंदगी में बड़े बुरे काम किए हैं, उसने न जाने डाकुओं के दरमियान कितनी औरतों को बेवा कर दिया है, कितने खानदानों को बर्बाद किया है, उसने न जाने कितने कत्ल किए हैं, लेकिन उसका इकरार हालेलुया। वो कहता है खुदावन आ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे खुदा का गहरा मसा, खुदा की शिफा बख्श कुदरत वो सब जो ईमान ले आए हैं उनके लिए नाज़िल होने को है। अपने हाथों को बुलंद कीजिए। ये खास लम्हात हैं जब अपने कलाम के जरिए से इनकलाब बर्पा करने को है। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। आज कितने हैं जो लाइलाज बीमारियों में गिरफ्तार हैं। ये रखिए बीमारियां गिरफ्तार कर लेती हैं। आज कितने हैं जो जादूगरी में गिरफ्तार हैं। आज कितने हैं जिनकी औलाद और उनके घर के हालात ठीक नहीं। अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। एक बड़ी कुदरत आपको छूने को है। रोसी थोड़ी अलारे बेखो ना मारा रेसो को रिसो बे खाना में थोना रासी रोबला खाना सीखो ताना मेरो रे बे रोसिका रोसी लमा के तेरी अलाज़े रे बे। मैं अपने चाहो जलाल के साथ तुम्हारे दरमियान उतरा हूं ताकि मैं तुम्हारे दुखों से तुम्हें रिहाई दूं। रामानी सोला रीबा रोसालामा
रिसोखोनमी, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। रासिली बाखानामा रोसिरी कानामा तोरियला रबा बाबा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारे लोग जिनको दिल की तकलीफ है, यीशु के नाम में वो लोग जिनको गुर्दों की तकलीफ है, यीशु के नाम में वो लोग जिनको पोशीदा बीमारियां गिरफ्तार किए हुए हैं, यीशु के नाम में खुदा का खादिम होते हुए मैं उनकी आजादी का ऐलान करता हूं। यीशु के नाम में ऐलान की बीमारियों, इन बदनों को छोड़ दो। आए बदरू हो, आए जादूगर हो, आए हर किस्म के मोखलात, यीशु के नाम में वो सब लोग जो जादूगरी के असरात से दुखों में हैं, बीमारियों में, गरीबी में, तंगहाली में, बेचारगी में, यीशु के नाम में मैं कलीसिया के तमाम लीडरान के साथ मिलकर इन तमाम जादूगरी की कुव्वतों को यीशु के नाम में बांध देता हूं। यहां 3 ऐसी बेटियां हैं जो बेऔलाद हैं, अपना हाथ बुलंद करें। यीशु, तू जो तह की बातें जानता है और तू जो कलाम मुजस्सम है, आए बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन प्यारी बेटियों को अपनी मिरास दे, क्योंकि औलाद तेरी मिरास है। मैं इन प्यारी बेटियों के खानदानों के बेहाफ पर तुझसे माफी मांगता हूं, यीशु के नाम में। बंद रहम खुल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बंजर जमीनें जरखेज हो जाएं, जादूगरी के असरात जिन्होंने औलाद को रोक रखा है, यीशु के नाम में इन प्यारी बेटी और बहनों को छोड़ दें। ऐलान किया प्लीज, तू जो मियां और बीवी के दरमियान, खानदानों के दरमियान नाचाकी लाता है, यीशु के नाम में हम तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ दे खानदानों को यीशु के नाम में। ओह खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजूद है। ओह तूने अपना कलाम नाज़िल फरमाया है और तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनकी हलाकत से उन्हें रिहाई बख्शता है। बेटा आमिर आप अपनी जगह पे जरा खड़े हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। हम इस नौजवान की तरफ अपने हाथ बढ़ाएंगे। आमिर बेटा आप खड़े हो जाएं। हालेलुया। आइए सारी जमात आमिर की तरफ हाथ बढ़ाए। ऐलानती शैतान, तू जिसने बीमारियों की सूरत में, तू जिसने डिप्रेशन की सूरत में, तू जिसने मुख्तलिफ तरीके से इस नौजवान के कारोबार को, इसकी सेहत को, इसकी तरक्की को रोक रखा है, आज की शाम यीशु के नाम में हम तेरी सारी कुव्वत को ज़ाइल कर देते हैं और यीशु के नाम में आमिर की आजादी का ऐलान करते हैं। ऐ टांगो यीशु के नाम में मजबूत हो जाओ। सारी कमजोरी जोर में बदल जाए यीशु के नाम में। ओह रिमाला सो को तो नबी, खुदावंद ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, मैं दुआ करता हूँ उस औलाद पर रहम कर और यीशु के नाम में मसीह कलीसिया से शराब नोशी, बदकारी, नापाकी, ज़िनाकारी, लड़ाइयाँ झगड़े, गंदी नापाक सियासत और हर किस्म की बुराई की जड़ें यीशु के नाम में उखड़ जाएं। यीशु के नाम में। ओह हालेलुया। आए औरत तेरा ईमान बड़ा है, इसलिए जो चाहती है वो तेरे लिए हो। हालेलुया।
खुदा मैं मान रखता हूँ कि तूने आज जितने लोग भी खड़े हुए हैं तूने इन्हें छुआ है, क्योंकि तेरा कलाम नाज़िल होने से ओ शिफा और हलाकत से रिहाई देता है। हम सारा जलाल तुझी को देते हैं। ओ तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी सताइश हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। आइए हम सब मिलकर खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। आज इस मीटिंग से कितने लोगों को फायदा पहुंचा, अपने हाथ बुलंद करें। आइए खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात की ट्रेनिंग दे रहा हूं इन दिनों में, गौर से सुनिए। फिर एक बात को दोहरा रहा हूं, मैं शाफी नहीं हूं, मैं इस चीज को मानता हूं। हम में से कोई भी शाफी नहीं है, लेकिन कलाम का नज़ूल शिफा है। आए खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। ऐ बाप, आज की शाम हमने तेरे बेटे की शान को सुना है कि वो मुजस्सम कलमा है, वो हमारी रूहों का निगहबान है, और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। ऐ खुदावंद तेरा खादम यर्मिया फरमाता है, ऐ खुदावंद तू शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तेरा फख्र है। आए खुदा पाक रू, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटा यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं कि वो शिफा का मंबा है, और हम उसके मार खाने से तमाम बीमारियों से शिफा पा चुके हैं। हम सब खादम अपने हाथों को सब लोगों की तरफ बढ़ाते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद तू अपने जाहो जलाल के साथ यहाँ पर मौजूद है। और आज की शाम फतह की शाम है, आज की शाम शिफा की शाम है, आज की शाम रिहाई की शाम है। हालेलुया। अब आप हम सब मिलकर दुआ करते हैं, इनके बीमार बदन यीशु के नाम में शिफा पाए। आमीन। क्योंकि तेरे बेटे के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। और खुदावंद तेरा खादम मुकद्दस ज़बूर रवीस कहता है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अब आप इनके दिल की मुरादें यीशु के नाम में पूरी हो। आमीन। आज खुदावंद ये बेउम्मीद होकर न जाएं, बल्कि खुदावंद ये शिफा को लेकर जाएं, ये खुदावंद बरकत को लेकर जाएं, और इनके घरों में कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। जो लोग बेरोजगार हैं यीशु के नाम उनके लिए जो रूहानी बीमार हैं, हम सब खुद मिलकर तरीकी की कुव्वतों को यीशु के नाम में बांधते हैं। आमीन। और जितने लोग जिस्मानी बीमार हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद इनके बीमार बदन शिफा पाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ऐ खुदावंद, मैं इन तमाम दरखास्तों को और तेल की बोतलों को और खुदावंद पानी की बॉटल्स को तेरे लहू से मसा करता हूँ, और सारे ही खानदान और सारे ही घराने तेरे नाम से नामजद हैं। यीशु के नाम में हम आए खुदावंद तेरे हजूर में इन दरखास्तों को फैला देते हैं और ईमान लाते हैं कि तूने अपने जलाली कुदरत और तरस से इन दरखास्तों को कबूल फरमा लिया है, और अब ये पानी और तेल तेरे लहू में बदल चुका है। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस पानी और तेल के वसीला से जिसमें तेरा लहू आ चुका है, मौजूदात होंगे यीशु के नाम में। जादूगरी के असरात खत्म हो जाएंगे और खानदानों में बहाली आएगी। हम इस बात पर काम और ईमान रखते और इस बात को जानते हैं कि आने वाली मीटिंग में बहुत सी गवाहियाँ होंगी। खुदावंद एक बार फिर मैं सदी और नजराने के लिए जो खुदावंद सब ने तेरे दिए हुए में से दिया, ईमान रखता हूँ जैसे पहले भी हमने दुआ की, ये तेरे हजूर में बखूर की मानत पहुँच चुका है। खुदावंद घरों से इसके बरक्स सारी खुदावंद तारीकी चली जाए और ख़ानदानों में नूर आ जाए, ख़ानदानों में बहाली आ जाए,
खानदानों में सेहत आ जाए, खानदानों में शादमानी आ जाए, बीमार ताल्लुकात शिफा पा जाएं, अधूरी बेकार सोचें कलाम मुकद्दस से तरतीब पाएं और तेरा नाम जलाल पाए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक रूह की मीठी और शीरीं रिफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम दूर व नज़दीक के घरानों और आलमगीर कलीसिया जो यीशु का जलाली बदन है, अब से लेकर अब तक किसी तौर पर होता रहे।